So now, Seema ma'am is also there with us. Ma'am, are you there? Yes, Priyanka, I am here. Ma'am, should we start? Yes, we can start. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. We have with us our speaker, Dr. Vandana Bangar ma'am, and also Principal ma'am has joined. So we are starting with the session, One Nation, One Tax, GST. As most of us are aware about this tax, this is One Nation, One Tax. And today we are privileged to have with us Vandana Bangar ma'am for this session. She'll be discussing about the introductory part and various challenges and opportunities that GST is giving people after 4 years also. So, first of all, I would like to invite Seema Agarwal ma'am to please welcome our guest. Ma'am, please. Thank you, Priyanka. Thank you, ma'am. So it's being very nice for the entire department that we have got the opportunity to interact with Dr. Vandana Bangar. As earlier, she used to be visiting faculty with us, being an expert of taxation. And today we invited her to give a brief about GST. And GST is a kind of issue which got amended every day. If you are learning something about GST, it will become obsolete if you have not updated yourself within a month or within a short time of period. We know that GST has been 4 years old. It has been implemented in 2017 and now 2021 is running on. But the thing is that GST, the concept of GST has been started very early, somewhere in 2000. After that, in 2004, then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he formed the first committee to set up some rules about GST. Then gradually it happens, चलता गया GST के लिए, and सरकारें बदलती रही. जो लोग कहते हैं ना कि भाई जीएसटी की वजह से ये हो गया, कॉमन जो एक जीएसटी का रिएक्शन, अगर जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर और वो बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, तो उन्होंने अपने घर में, इफ दे बिलोंग टू मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने अपने घर में जीएसटी को एक कर्ज के रूप में ही सुना होगा कि पीपल आर, मतलब दो तरह के लोग हैं, एक कंज्यूमर, एक तो टैक्स पेयर. जो हम सब टैक्स पे करते हैं, हमारे लिए जीएसटी बहुत रिलीफ की बात है. जैसा आपने देखा कि इस सेशन का टैगलाइन ही यही है, वन नेशन वन टैक्स. तो टैक्स पे के लिए बहुत रिलीफ है और बेसिकली इट इज अ रिलीफ फॉर बोथ टैक्स पे एंड टैक्स कलेक्टर. जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, उनके लिए. बट जो हमारे यहाँ थोड़ा सा सिस्टम था बिजनेस करने का, बिजनेस चलाने का, वो सिस्टम के अंदर जीएसटी को थोड़ा फिट करने में लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई. बट ऑल्दो इट इज़ गुड फॉर एवरीवन, तो सारी सरकारों ने इसको एक्सेप्ट किया है. ये नहीं है कि ये कांग्रेस सरकार नहीं चाहती थी या बीजेपी सरकार चाहती थी. ये पिछले आप देख लीजिए 2007 से 2017, तो 17 सालों में सरकारें कितनी बार बदली, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसका चलता रहा. 2015 में ये पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी पास हो गया था, फिर नहीं चला क्योंकि फिर सरकार बदलने से थोड़ा समय आ गया. 2016 में फिर राज्यसभा में पास हुआ. जैसा हम जानते हैं सिस्टम होता है हर लॉ का. फिर प्रेसिडेंट ने अपनी अप्रूवल दी. फाइनली ये शुरू हुआ 2017 से. तो जीएसटी के बारे में सुनना हम सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे हम जीएसटी पढ़ें या नहीं पढ़ें, क्योंकि हम सब हर दिन काफ़ी मात्रा में जीएसटी पे करते हैं. जो भी इस दुनिया में आ जाता है, इंसान बन के कंज्यूमर हो जाता है, चीज़ें कंज्यूम, गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने लगता है, वो जीएसटी देता है और वो टैक्स पेयर की कैटेगरी में आ जाता है. तो इसलिए जीएसटी बहुत वाइड और बहुत इंटरेस्टिंग है.
तो वन्ना मैम ने उसको कैसे कंसाइज करके कि वो 1 घंटे में कैसे समेटेंगी, वो उन्होंने किया होगा। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। So I welcome you, Dr. Vandana Bangar, and I welcome all the participants, especially all the students who have joined it. This session will be a great learning for you. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. So now, as said, imposed on 1st July 2017, this date has been designated as GST Day by central government, and as this is an indirect tax imposed on the supply of goods and services, it is a multi-stage destination-oriented tax imposed on every value addition which managed to replace multiple indirect taxes including VAT, excise duty, and service taxes, etc. It's been 4 years now, and so today we have with us Dr. Vanna Bangar ma'am, who is a gold medalist in BCom Karnataka University, to share her views on this topic. Ma'am has done FCA and PhD in this subject. She is author of various books at UG, PG, and professional levels. Ma'am is not only a renowned faculty in business and development and corporate laws, but she is also a consultant in direct and indirect taxation. She is a prolific author and contemporary writer of articles in various leading magazines and newspapers. We are privileged to have you here with us, ma'am, and I hope this session will be a great learning for you all. Now, the session is all yours, ma'am. Thank you so much, Priyanka. Thank you, Seema ma'am. First of all, I thank Seema ma'am for giving me this opportunity to put forth this presentation. And in fact, I'm so excited to be back among our people. You know, ऐसा लग रहा है कि मैं वापस college में हूँ, and I'm really excited to have everyone here. So thank you, Seema ma'am. Thanks a lot. And good morning, everyone. So I begin my presentation on GST. Let me share my screen. Visible है? Yes, ma'am. My screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, yeah. So my presentation today is on the extraordinary accomplishment of our country with respect to taxation system, that is GST. जैसे मैंने कहा, ये one nation, one tax है. यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है सिंगल टैक्सेशन सिस्टम का, राइट, सिंगल टैक्स रेट लाने का. थ्रू द एडवेंट ऑफ GST वी वर एबल टू अचीव दिस. Through my presentation, I shall try to give a brief idea of why GST, how GST was introduced, and what is GST. Link तेरे को डालना है. ठीक है, जब हम टैक्स के बारे में जब भी बात करते हैं ना, तो टैक्स का मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, बहुत कम्बरसम प्रोसेस होगा एंड बियॉन्ड क्लैरिटी होगा, राइट? बट मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू एंड प्रॉमिसिंग टैक्स रिजिम ऑन 1st July 2017, दैट इज ऑफ कोर्स हम इसे कहते हैं वर्ल्ड्स एनवी एंड इंडियाज प्राइड, राइट? अब लेट मी स्टार्ट विद व्हाट इज GST. GST हम सब जानते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है. टैक्स, जस्ट रिकैप, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से. तो डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड ही बेयर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में द पर्सन पेइंग द टैक्स collects it from the ultimate consumer. यहाँ पे क्या हो गया? The burden is shifted onto another person. जो पे कर रहा है वो उसका burden bear नहीं कर रहा है. Again, it is regressive in nature. Regressive in nature means what? कि irrespective of my ability to pay, burden मेरे ऊपर वही है जो दूसरों पे है, right? Equally, everyone bears the burden irrespective of their ability to pay. हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट टैक्सेस में वी हैव गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट नाउ GST जिसकी हम बात कर रहे हैं. वी हैव कस्टम्स ड्यूटी एंड डायरेक्ट टैक्स में डेफिनेटली इनकम टैक्स है. इनकम टैक्स, यस,
age-old income tax, and that will go on till the time coming, right? That cannot be evaded at all. Coming to genesis of GST in India. GST किस पे लेवी होता है? GST is levied on supply of goods or services or both in India, including the state of Jammu and Kashmir. It is a destination-based tax on consumption of goods and services. Now, destination-based tax का क्या मतलब है यहाँ पे? Destination-based tax का मतलब होता है कि goods are taxed at the place where they are consumed. जैसे जीएसटी के पहले हमारे पास क्या था? एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स था, राइट? एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती थी मैन्युफैक्चर पे, पर एक्साइज ड्यूटी कब लगाई जाती थी? जब गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे, दैट इज ओरिजिन पे, राइट? पर जीएसटी को कब लगाया गया है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड है, दैट इज इट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या जहां कंज्यूम हो रहा है गुड्स वहां पे टैक्स लगाया जा रहा है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि जो स्टेट जहां पे गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वो स्टेट को अधिकार है टू कलेक्ट द टैक्स। Whose right it is? It is the right of that state where the goods are consumed or the services is consumed. This is what is meant by destination based consumption tax. Right, I hope this is clear. Now it is levied at all stages. हर स्टेज पे लगाया जा रहा है जीएसटी। जैसे जब मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ गुड्स को तो मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ, यस जीएसटी लग के मुझे रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ रहा है। अगेन प्रोसेसिंग हो रही है, वहां पे भी लग रहा है टैक्स, एंड देन फाइनली मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, फाइनल गुड्स आ रहे हैं, अगेन आई एम गोइंग टू पे टैक्स ऑन इट्स सप्लाई। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी टैक्स मैंने पहले पे किया है उसका मुझे क्या मिलता जा रहा है? क्रेडिट मिलता जा रहा है। यानी मैंने जो रॉ मटेरियल पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट में ले रही हूँ, और उसको मैं कहाँ सेट ऑफ कर रही हूँ? जब मैं फाइनल गुड्स पे सप्लाई पे टैक्स पे कर रही हूँ तो वो जो क्रेडिट है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो इस सब प्रोसेस से क्या हो रहा है? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाया जा रहा है, न कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है, राइट? सिर्फ वैल्यू एडिशन पे, क्योंकि हर जगह हर स्टेज पे हमें क्या मिल रहा है? हमें सेट ऑफ मिलता जा रहा है, क्रेडिट मिलता जा रहा है। कमिंग टू नाउ अ लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ कहाँ से जीएसटी। जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, जैसे सीमा मैम ने कहा कई बार बिजनेस पीपल जैसे नई जीएसटी वाज नॉट गुड, व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड, इससे हमें और तकलीफ हो गई है एंड ऑल दैट। बट लेट अस टॉक अबाउट व्हाई जीएसटी वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। In fact, as early as 2000, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पीएम थे तो उन्होंने एक कमिटी बिठाई थी टू डिजाइन दिस जीएसटी मॉडल। 2006 में the then finance minister P. Chidambaram ji, he declared in his budget that GST would be introduced from April 2010. But 2014 में जब एनडीए आई पावर में तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, टू 2016 में अमेंडमेंट एक्ट बना। नाउ व्हाई दिस अमेंडमेंट एक्ट? क्यों अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना जरूरी था? See, till now we had, our constitution had given the powers to the center and to the state separately for levying taxes. For example, center के पास power थी to levy excise duty, right? सर्विस टैक्स सेंटर के पास पावर थी। अब स्टेट के पास पावर थी फॉर एग्जांपल वैट लेवी करने की। सो ये जो पावर्स थे ये दोनों पावर्स सेग्रीगेट किए गए थे, दोनों एक दूसरे की टेरिटरी में घुस नहीं सकते थे, दोनों के अधिकार अलग अलग थे, राइट? अब जब हम जीएसटी लाने की बात करें तो हम कह रहे एक टैक्स लगेगा। जब एक टैक्स लगेगा तो ये कहाँ, इट वाज टू बी डिसाइडेड कि कौन लगाएगा ये टैक्स, सेंटर या स्टेट। इट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का है, राइट? वी हैव अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, दैट इज वी हैव एट द सेंटर वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एट द स्टेट वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। बोथ हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दोनों को रेवेन्यू चाहिए, राइट? तो अब रेवेन्यू जब दोनों को चाहिए तो अब यहाँ पे क्या, जब एक ही टैक्स लगेगा तो रेवेन्यू किसका होगा, सेंटर का होगा या फिर स्टेट का होगा, राइट? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि अभी तक पावर्स क्या थे, राइट्स क्या थे, अधिकार क्या थे, सेपरेटेड थे कि सेंटर इस पे लगा सकती है और स्टेट इस पे लगा सकती है। पर जब हम जीएसटी ला रहे थे तो साइमल्टेनियसली कॉन्करेंटली हमें दोनों सेंटर और स्टेट एक ही आइटम पे टैक्स
लगाती थी, लगाने वाली थी. लाइक दिस वाज द मॉडल दैट वी हैड टू ब्रिंग. दोनों का एक ही आइटम पे टैक्स लगना था. तो ये दोनों को जब पावर्स, कॉन्करेंट पावर्स मिलना था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं था, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया 2016 में, एंड फिर 30 जून 2017 में सारे स्टेट्स ने अपने अपने SGST, दैट इज स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास किया. क्यों जरूरी था स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास करना? क्योंकि जैसे मैंने कहा, यहाँ पे सिंगल टैक्स का सिस्टम था, तो हर एक स्टेट को भी अपने यहाँ पे SGST लागू करना था, राइट? दे हैड टू impose, introduce this goods and service tax in their state also. इसलिए हर एक स्टेट को SGST एक्ट, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास करना पड़ा. 1st July 2017 को GST was launched, and as our honorable Prime Minister PM नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, it's a good and simple taxation. Definitely it's a good and simple taxation. एंड इनफैक्ट जब 1 जुलाई को लॉन्च किया गया, तब जम्मू एंड कश्मीर ने तब तक पास नहीं किया था SGST, एंड इट वाज नॉट रेडी टू एंटर इनटू इट. बट 8 जुलाई को SGST एक्ट वाज पास्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर, एंड देन द जर्नी कंटिन्यूज. हमारे लिए GST क्यों इतना मायने रखता है? क्योंकि हमने इसे कंसीव होते हुए देखा है, हमने इसका बर्थ देखा है, और अब हम इसको बढ़ते हुए देख रहे हैं. आज वो चाइल्डहुड स्टेज पे जब आ गया है, तो हम इसको देख रहे हैं कितने मेच्योरिटी से, कितने ट्रांसफॉर्मेशन से इट हैज कम, एंड हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर इकोनॉमी ऑल्सो, हाउ बेनिफिशियल इट हैज बीन टू आवर इकोनॉमी ऑल्सो. सो with effect from 1st July, GST was rolled out, and 8 July से all over India, including state of Jammu and Kashmir, this was introduced. GST लाने के पीछे क्या था कि a number of central and state taxes were amalgamated into a single tax. पहले GST के पहले क्या था? एक्साइज थी, वैट था, सर्विस टैक्स था. इन सबको हमें क्या करना था? इन सबको हमें मर्ज करना था, अमालगमेट करना था एक टैक्स में, दैट इज GST, राइट? ताकि that we'll be talking about, that cascading effect and the double taxation could have done away with. Again, coming to why GST was needed in India. GST के पहले भी ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारे कंट्री में नया था. एक्साइज ड्यूटी लग रही थी, सर्विस टैक्स 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, राइट? सो इट वाज नॉट दैट वाज समथिंग वेरी, इनडायरेक्ट टैक्स वाज नॉट देयर इन इंडिया. बट व्हाट वाज द नीड फेल्ट फॉर GST, इंट्रोडक्शन ऑफ GST? क्योंकि इन इनडायरेक्ट टैक्स में डेफिशिएंसीज जरूर थे. नो डाउट दे वर आल्सो वैल्यू एडेड टैक्स ओनली, राइट? But there were deficiencies in this existing value added taxation system, और उन deficiencies को cure करने के लिए GST को लाना बहुत जरूरी था. As I said, it was our Prime Minister's dream to integrate India into one market with single tax rate, which we have really, to some extent I can say we have achieved that, we have accomplished that, fulfilled that dream. अब डेफिशिएंसी क्या थे वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम में, जो GST क्यों लाया गया, क्यों GST के बारे में हम सोचने लगे? सबसे पहले नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेट्रा. स्टेट लेवल पे हमारे ऊपर क्या क्या टैक्स लग रहे थे? लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्रॉय थे, एक्सेट्रा. सो मेनी टैक्सेस वर लेविड. और जब वैट लग रहा था, या हम कहते हैं सील्स टैक्स लग रहा था, वैट जो हमने बाद में कहा वैट लग रहा था, तो ये जब वैट लग रहा था, तो इन टैक्सेस जो दूसरे लोकल टैक्सेस थे, उनका क्रेडिट हमें कहीं नहीं मिल रहा था. दे वर नॉट, क्योंकि बेसिक रीजन क्या था? बिकॉज ऑल दिस एक्ट्स वर डिफरेंट. यदि मैं कहूँ एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट डिफरेंट है, लग्जरी टैक्स एक्ट डिफरेंट है, एंड वैट वाज डिफरेंट, तो कहीं भी इन सारे एक्ट्स का कहीं इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा था, राइट? That is the reason टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था. सेकेंड, कास्केडिंग इफेक्ट था. What is cascading effect? Say for example, मैंने मैन्युफैक्चर किया कोई भी आइटम, राइट? मैन्युफैक्चर के स्टेज पे मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ा, हो गया मैन्युफैक्चर प्लस एक्साइज ड्यूटी. नाउ जब मेरा फाइनल गुड हुआ तो उस पे क्या है?
मैन्युफैक्चर कॉस्ट प्लस द एक्साइज ड्यूटी प्लस व्हाटएवर माय मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। जब यही गुड्स स्टेट में आया सेल होने के लिए, आई एम टॉकिंग हियर अबाउट इंट्रा स्टेट सेल राइट नाउ, राइट? तो जब स्टेट में आया तो स्टेट पे क्या लगा? स्टेट ने अपना टैक्स लगाया, दैट इज वैट। जब स्टेट ने वैट लगाया तो नो व्हाट हैज हैपेंड, किस पे लगा वो? दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस द एक्साइज ड्यूटी दैट आई हैव पेड। एंड वैट में कहीं ये प्रोविजन नहीं था कि जो मैंने एक्साइज ड्यूटी पे किया उसका मैं क्रेडिट ले लूं या उसको मैं सेट ऑफ कर दूं कि ये टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, इतना अमाउंट में गवर्नमेंट को दे चुकी हूँ, तो इसका तो मुझे सेट ऑफ मिलना चाहिए, अगेन आई एम पेइंग टैक्स ऑन दैट, राइट? ये इफेक्ट, ये कहीं भी प्रोविजन नहीं था। अगेन आई एम सेइंग दैट वाज बिकॉज स्टेट वैट वाज डिफरेंट, एक्साइज ड्यूटी वाज डिफरेंट, दोनों अलग अलग गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी, इस कारण से प्रॉब्लम आ रही थी। दिस इज कॉल्ड एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, राइट? थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज के बाद कहीं भी हमें एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा था। सिमिलरली जब हम वैट के बारे में बात करें, सर्विस टैक्स और वैट दोनों ही बिल्कुल अलग अलग एक्ट थे, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा था कि इन दोनों का इंटीग्रेशन हो या हमें सेट ऑफ मिले या हम क्रेडिट ले सके, राइट? एंड देन देयर वाज आल्सो डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, राइट? तो रेस्टोरेंट में क्या है? वी हैव फूड दैट इज गुड्स, सो उस पे क्या लगेगा? गुड्स पे टैक्स लगता था, राइट, अर्लियर। एंड देन नॉट, जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सिर्फ खाना खाने नहीं जाते, हम किसके लिए जाते हैं? एक वो एम्बियंस होता है, एक हमें जो सर्विस मिलती है वहां से, यू नो द सर्विस, दैट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट। तो सर्विस टैक्स भी लगने लगा था, राइट? तो सेंटर कहती सर्विस, ये सर्विस की कैटेगरी में आएगा तो सर्विस टैक्स लगाया जाएगा। स्टेट कहती क्योंकि सेल ऑफ फूड है तो इस पे वैट लगाया जाएगा। नाउ एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों ही, और तो अवॉइड डिस्प्यूट, दोनों क्या करने लगे थे कि यस दोनों सर्विस टैक्स भी लग जाएगा और फिर वैट भी लग जाएगा। तो क्या हो रहा था? डबल टैक्सेशन ऑन दैट सेम थिंग, ऑन दैट सेम कमोडिटी। इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें जीएसटी लाने की जरूरत लगी, राइट? Then what were the taxes that is subsumed in GST? यानी जो टैक्सेस हम बात कर रहे हैं अलग अलग लेवी हो रहे थे, उन्हें हमको जीएसटी में मर्ज करना पड़ा या उन्हें अमालगमेट करना पड़ा। तो कौन से ऐसे टैक्सेस थे? सिर्फ सेंट्रल में हम जो बात कर रहे हैं मेनली वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, देन वी हैव सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड वी हैड सर्विस टैक्स, राइट? दीज वर सर्टेन टैक्सेस व्हिच वर सबस्यूम्ड इन द जीएसटी। स्टेट में स्टेट वैट, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स एक्सेट्रा, इन सब को अब हमने खत्म करके एक टैक्स लाया है, दैट इज जीएसटी। I hope now you are understanding कि क्यों GST was thought of and why it was given so much importance, and हम इसकी क्यों बातें कर रहे हैं, वन नेशन वन टैक्स की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेस लग रहे थे और हर एक एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस थे, हर एक जगह अलग अलग हैसल्स थे, उनको फुलफिल करते ही परेशान हो जाता था टैक्स पेयर। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है? जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? सबसे पहले इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स सिंगल टैक्स से डेफिनेटली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर लेवल से लेके कंज्यूमर के लेवल तक हम इसको वी आर पेइंग दैट टैक्स एट एवरी लेवल एज आई टोल्ड यू, बट एट ऑल द लेवल्स जो प्रीवियस टैक्स हमने पे किया है दैट इज वी आर गेटिंग द क्रेडिट ऑफ दैट टैक्स एंड वी कैन use it as a set off when we pay the final GST tax. इन सब का इफेक्ट क्या है कि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे we are going to pay the tax. Then there is continuous flow of tax credits. कहीं भी हम चेन ब्रेक नहीं कर रहे हैं, राइट? पहले क्या हो रहा था इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में, एक्साइज ड्यूटी का जैसे ही वैट लग जाता था वहां चेन ब्रेक हो जाता था, राइट? तो यहाँ जीएसटी के इसमें कहीं भी चेन ब्रेक नहीं हो रहा है टैक्स क्रेडिट लेने का, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लेवल से लेके सप्लायर कंज्यूमर लेवल तक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट हमें मिलता जा रहा है। अगेन टैक्स इंसिडेंस किस पे कौन बेयर कर रहा है? इट इज ओनली द फाइनल कंज्यूमर, राइट? क्योंकि
जैसे मैंने कहा अगेन सेट ऑफ जब हमको मिलता जा रहा है तो हम उस सेट ऑफ को क्रेडिट को यूज कर रहे हैं, आगे टैक्स पे कर रहे हैं एंड फिर शिफ्ट कर रहे हैं बर्डन कंज्यूमर पे. फाइनली इट्स ओनली द कंज्यूमर हु इज bearing the burden of this tax. मिटिगेशन और कास्केडिंग, मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट या डबल टैक्सेशन को हमने खत्म किया. जैसे मैंने कहा एक्साइज ड्यूटी पे टैक्स लग रहा था, जब हम स्टेट में स्टेट वैट लग रहा था तो एक्साइज ड्यूटी को इंक्लूड करते हुए लग रहा था कॉस्ट ऑफ द आइटम प्लस एक्साइज ड्यूटी, और उस पे स्टेट वैट लग रहा था. पर अब जब जीएसटी है तो क्या है, एक ही टैक्स लगेगा, राइट. ऐसे मल्टीपल टैक्सेशन नहीं है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स ये चीज खत्म की गई. सिमिलरली डबल टैक्सेशन सिस्टम, इसको भी हमने अबॉलिश किया. जैसे मैंने कहा था रेस्टोरेंट की एग्जांपल दिया आपको, वहां पे फूड पे वैट भी लग रहा था एंड देन सर्विस टैक्स भी लग रहा था. अब सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी. सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड ब्रिंगिंग जीएसटी, राइट. दैट इज व्हाई हाउ जीएसटी एंड in fact why GST was introduced. Framework of GST हमारे लिए एक dual GST model system है. हमारे यहाँ पे we have CGST, SGST, UTGST, IGST. I'll just come to the point कि ये सब क्या है. We have legislative framework, classification of goods and services है, composition scheme है, registration है, exemptions है and so on. अब आते हैं dual GST model. डुअल जीएसटी मॉडल क्या है? इंडिया हैज अडॉप्टेड ए डुअल जीएसटी मॉडल. क्यों? हम सब जानते हैं कि हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. फेडरल सिस्टम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, राइट. दिस बोथ आर डिफरेंट. एक ही गवर्नमेंट नहीं है, दो जगह पावर्स है, राइट. एक सेंटर में और एक स्टेट में. जब यहाँ पावर्स और दोनों के ही अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. Now revenue has to be generated by both to meet their responsibilities, right? तो in view of this, अब जब हमने कहा कि जीएसटी लाना है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, अब प्रॉब्लम ये आई कि एक टैक्स कौन लगाएगा? सेंटर ले जाएगी इसका रेवेन्यू या फिर स्टेट ले जाएगा, राइट. तो इट इज नॉट पॉसिबल. स्टेट कभी एग्री नहीं होता यदि हम स्टेट को रेवेन्यू नहीं देते, राइट. तो इसलिए डुअल जीएसटी मॉडल लाया गया कि सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली विल लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. तभी आपने देखा होगा, ये भी आपने कभी जीएसटी बिल, कोई भी बिल आप देखेंगे तो वहां पे आपको क्या दिखता है आजकल जब जीएसटी लगता है तो, से फॉर एग्जांपल लिखा होगा नीचे 4% सीजीएसटी, 4% एसजीएसटी. ये क्यों है? वही आइटम पे एक्चुअली 8% टैक्स लग रहा है, पर उसको अब क्या कर दिया, 4% सेंटर का हो गया रेवेन्यू और 4% किसका हो गया, स्टेट का हो गया, राइट. इस तरह से हमने डुअल जीएसटी मॉडल लाया है. एंड सिमिलरली ये तो हम बात करें इंट्रास्टेट की. अब जब इंटर स्टेट सेल होता है तो हम क्या लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जैसे सीएसटी लगता था ना, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया जाता है. इसकी पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है, राइट. अगेन एज आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्यों लाया गया, टू बिकॉज डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्टिंक्ट है और उनको मीट करने के लिए दे हैड टू डेफिनेटली ब्रिंग आउट ड्यूअल जीएसटी मॉडल, राइट. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है? There is single legislation, CGST, that is Central Goods and Service Tax Act 2017 for levying CGST. CGST, Central Goods and Service Tax, right? Similarly, union territories, हमारे पास 9 union territories है, जिसमें without state legislature जो union territories है 6 हैं and 3 with state legislature है. तो अब state union territories में जब state नहीं है तो फिर वहाँ क्या लगेगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास करना पड़ा, राइट. ये कौन से हैं 6 विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, रिसेंटली लद्दाख एंड चंडीगढ़. दीज आर गवर्न्ड बाय UTGST, दैट इज यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट. एंड जहां यूनियन टेरिटरीज जिसके स्टेट लेजिस्लेचर उन लेजिस्लेचर है वो क्या है, जिसे हम स्टेट भी कहते हैं, है ना, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर
एंड पुडुचेरी, इनके स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पास किया गया। हर एक स्टेट का और हर यूनियन टेरिटरी ने अपने अपने जीएसटी एक्ट्स पास किए। डिफरेंट, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, राइट। पर इन सब का बेसिक फीचर जो है वो एक ही, इन सब का फ्रेमवर्क जो है वो एक ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स जो इनमें है वो एक ही रखा गया है, राइट, ताकि ये डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाए एंड पहले वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अगेन हम फेस न करें, राइट। अब अभी तक मैंने आपसे कहा सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो ये क्या है? जीएसटी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें इट कंप्राइजेस ऑफ सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इन दिस ये कब किस पे लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे, नो डाउट। इंट्रा स्टेट मींस विद इन द स्टेट सप्लाई पे ये टैक्स लगेगा, राइट, बट दिस इज इम्पोज्ड बाय whom? By the central government, and it will be governed by the CGST Act. SGST, State Goods and Service Tax. This is levied again on intra-state, within the state जब हम सप्लाई कर रहे हैं, एक ही स्टेट में जब सप्लाई किया जा रहा है गुड्स को, अभी हम इंटर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट की बात कर रहे हैं, राइट। तो फिर अगेन SGST लगाया जाता है, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। दिस इज लेविड बाय whom? By the स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? दोनों सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री किया है कि वो एक ही कमोडिटी पे जो टैक्स लगा है उसका आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से अ डीलर इन महाराष्ट्र हु सोल्ड गुड्स टू अ पर्सन इन महाराष्ट्र ओनली, से ₹10,000 का जीएसटी रेट उस पे 18% है। तो नाउ जीएसटी इसमें कैसा होगा? जैसे मैंने कहा, आपने बिल देखा होगा कि 9% विल बी सीजीएसटी which is going to the government, central government, and 9% will be SGST which will go to the state government, right. इसी तरह से UTGST for union territories, and it is levied on the intra union territory supply of goods and services. जो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही सप्लाई किए जा रहे हैं उस पे UTGST लेवी किया जाता है। Then coming to IGST. IGST क्या है? ये तो हम बात कर रहे थे इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। अब हम आते हैं इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। सपोजिंग फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र यदि गुड्स सप्लाई हो रहे हैं तो वहां क्या लगेगा? वहां पे IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड हु हैज द पावर टू इम्पोज दिस टैक्स और हु हैज द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्स? दिस विल गो टू center. Then the center will apportion it to the respective states. Say a businessman from Maharashtra sold goods to a businessman to Gujarat, right? अब GST rate क्या है? 18%. Normally IGST rate is equal to sum total of CGST and SGST, right? अब 18,000 जो चार्ज करा है IGST, ये कहाँ जाएगा? इस सेंटर को जाएगा। Manner of levy of dual GST. They are levied simultaneously on every transaction of supply of goods except exempted goods पे नहीं लगाया जाता है। हम आएंगे कि गुड्स कौन से जीएसटी से बाहर रखे गए हैं एंड ट्रांजैक्शंस जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो हमने एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है कि इसके नीचे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इन सब के दिस इज द मैनर ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हमने एक नॉर्मल एक हार्मोनाइज क्लासिफिकेशन रखा है गुड्स का। जैसे मैंने कहा हर जगह एक्ट डिफरेंट है, स्टेट में भी एक्ट डिफरेंट है हर एक स्टेट का, किंतु क्लासिफिकेशन बाकी सारी चीजें एक ही फ्रेमवर्क पे रखी गई है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है? Every supplier of goods or services is required to obtain registration in the state या यूनियन टेरिटरी जहां पे वो टैक्सेबल सप्लाई करता है यदि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स दिस थ्रेशोल्ड लिमिट। हमने एक लिमिट रखी है कि इसके ऊपर यदि आपका टर्नओवर होता है तो ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी के अंडर में, राइट। ये क्या है? ये 3 कैटेगरीज में हमने बाइफरकेट किया है इसको। स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे यदि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का टर्नओवर एग्रीगेट 10 लाख से ऊपर है
तो फिर आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा जीएसटी में। वो कौन से स्टेट से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। स्टेट्स जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से, वो है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना। एंड स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख, यहाँ पे सर्विसेज के लिए 20 लाख के एंड गुड्स के लिए 40 लाख कहा गया है। दे आर जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। एक्चुअली क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये जो 11 स्टेट्स है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, इनको है ना क्या किया गया है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स माना गया है, राइट। इसलिए नॉर्मली इनके लिए अलग ही कहीं ना कहीं अलग टैक्सेशन सिस्टम होता है, इसलिए इसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कहा जाता है। टैक्स, हु पेज द टैक्स? यस, जीएसटी regime में tax is paid by taxable person, a person who is registered under this, या फिर जिस पे टैक्स लायबिलिटी अराइज हो गई है उसे टैक्स पे करना पड़ता है। किंतु यहाँ पे एक और सिस्टम दिया गया है, दैट इज कंपोजिशन स्कीम एंड एग्जेम्पशन। कई बार होता है हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं, राइट, नो डाउट हम रजिस्ट्रेशन के एम्बिट में आते हैं, फिर भी बहुत ज्यादा हमारा टर्नओवर नहीं है, स्मॉल बिजनेस है, राइट। तो उसके लिए क्या करा गया है, कंपोजिशन स्कीम लाई गई है। कंपोजिशन स्कीम में क्या है, इनफैक्ट यहाँ पे एक रेट फिक्स कर दिया गया है। से फॉर एग्जाम्पल इन केस गुड्स हैं, यू आर अ मैन्युफैक्चरर, तो फिर आपके लिए 1% रेट, दैट इज 0.5% CGST एंड 0.5% SGST, टर्नओवर का 1% आपको पे करना है, राइट। यदि रेस्टोरेंट सर्विस है 5% है, एंड अदर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ बाकी टैक्स रेट्स क्या है, ये फिक्स कर दिया गया है कि आपको यही इतना पे करना है अपने टर्नओवर पे। देन दैट इज बेसिकली फॉर द, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम, बेसिकली जब हम स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं, और सर्विसेज के लिए टैक्स रेट फिक्स कर दिया गया है 6%। पर स्मॉल बिजनेसेस की बात जब हम कर रहे हैं तो कौन आते हैं स्मॉल बिजनेसेस में, जिनकी टर्नओवर लिमिट, हम इसको जब भी हम टर्नओवर लिमिट देखते हैं हम प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर से देखते हैं। गुड्स के केस में यदि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो फिर 75 लाख से ज्यादा न हो तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। कंपोजिशन स्कीम जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो तो सिर्फ 1% फिर पे करना, यदि उसने ऑप्ट कर लिया तो। फिर इरिस्पेक्टिव कि गुड्स पे 12% टैक्स है या 6% टैक्स है, उसे इतना ही पे करना है यदि उसने इस स्कीम में ऑप्ट किया है तो। सो ₹75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। रिमेनिंग स्टेट्स के लिए ये लिमिट क्या हो गई है, 1.5 करोड़, और सर्विसेज के लिए है 50 लाख। किंतु एक चीज है यहाँ पे, जब ये कंपोजिशन स्कीम में आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, दे कैन नॉट टेक द क्रेडिट। आपने कई बार छोटी दुकानों में कहीं डिस्प्ले पे देखा होगा कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल, राइट, कहीं ये डिस्प्ले करना उन्हें जरूरी होता है। तो ये लोग है ना कभी आपको जीएसटी बिल नहीं दे सकते हैं, they will give you just a normal bill, but because they cannot collect the tax from the consumers, वो टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, उनको उनके ही जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा। आप कई बार देखिए कई छोटी छोटी दुकानों में या जो जहाँ छोटे बिजनेस हैं ये हैं, तो वहां पे एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रहेगा जहाँ पे लिखा होगा कंपोजिशन स्कीम, या दिस इज विद इन द एम्बिट ऑफ द कंपोजिशन, या ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम एक्सेट्रा। दे विल नेवर गिव यू अ जीएसटी बिल बिकॉज हम वो क्रेडिट नहीं ले सकते, आगे वो क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। एक और चीज थी जीएसटी में, कॉम्पनसेशन सेस। अब क्या हुआ, कई बड़े स्टेट्स जो थे महाराष्ट्र एंड ऑल, दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज द रेवेन्यू टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वैट जब लग रहा था और अब जीएसटी एक ही नेशन एक टैक्स आ गया तो ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू लूज द रेवेन्यू। तो इन लोगों के लिए कॉम्पनसेशन सेस लाया गया टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ देयर रेवेन्यू। तो ये किस पे लगाया गया, दे सेड इट इज टू बी लेविड ओनली ऑन से लग्जरी आइटम्स या डीमेरिट गुड्स, सिंफुल गुड्स जो हम कहते हैं, जब हम कहते हैं वी हैव टू, जैसे पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर्स, इन सबसे दूर रहना चाहिए, तो उस पे एक्स्ट्रा लगा दिया कॉम्पनसेशन सेस। नाउ
GST is levied on supply of all goods and services except GST किस पे लेवी किया जाता है, राइट? गुड्स एंड सर्विसेज, यस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, पर कुछ चीजों को GST के एम्बिट से बाहर रखा है और कुछ पे डबल टैक्सेशन आज भी है। कैसे? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे GST नहीं लगाया गया है क्योंकि ये अभी भी किसके पास इसका अधिकार है? स्टेट को दिया गया है। No state is ready to give up this right, this power to levy the tax on liquor. So alcoholic liquor has been kept out of GST. There is no single tax. That is why you must have seen ki rates of liquor is different in different states, right? So manufacture of alcoholic liquor still continues to be state excise duty का matter. तो वहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, CST वैट एक्सेट्रा स्टेट लगाएगी। पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इस पे अभी तक GST नहीं लगाई गई है, पर शॉर्टली लग जाएगी। अब नोटिफिकेशन आने वाला है तो शॉर्टली इसको इसमें लाने वाले, GST के एम्बिट में लाया जाएगा। टोबैको पे क्या है? GST भी है, किंतु अगेन यूनियन गवर्नमेंट हैज रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑल्सो। इसको एक तरह का हम सिंफुल गुड मानते हैं, डीमेरिट गुड या सिंफुल गुड, जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो इस पे क्या किया है? टोबैको, अगेन सबसे ज्यादा रेवेन्यू ही टोबैको से आ रहा है, तो इस पे GST लगाया गया है, बट एट द सेम टाइम एक्साइज भी इस पे लगाई जाती है। तो टोबैको पे क्या है? GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज दोनों ही हमें पे करना होता है। ओपियम, इंडियन हैम, नार्कोटिक ड्रग्स, नार्कोटिक्स, इन पे क्या है? इन पे GST जरूर है, बट एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी जो है, पावर है, उसको नहीं गिव अप किया। सो इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है एंड GST भी लगती है। रियल एस्टेट पे GST नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो गुड्स पे टैक्स लग रहा है। अब जब हम गुड्स का डेफिनेशन देखते हैं तो गुड्स इज ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, एंड जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इस पे टैक्स नहीं लग सकता। तो GST इस पे नहीं लगता है रियल एस्टेट सेक्टर पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, किंतु कंस्ट्रक्शन सर्विस जो है उस पे GST लगेगा क्योंकि वो सर्विस के एम्बिट में आ गई, राइट? कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे डेफिनेटली GST लगता है। अब किस तरह से हम टैक्स क्रेडिट लेते हैं इसका, राइट? जैसे मैंने CGST पे किया, CGST जैसे अभी ऑलरेडी आई एम थिंक नाउ वी आर फैमिलियर विद द वर्ड CGST, SGST, तो CGST पे किया है। अब जैसे मैंने कहा हर एक स्टेप पे मैं इसका क्रेडिट ले सकती हूँ, तो CGST का क्रेडिट जो होता है वो जब मैं आगे CGST को पे करूंगी तो उसमें मैं उसका क्रेडिट यूज कर सकती हूँ, या फिर जब मैं इंटर स्टेट सप्लाई कर रही हूँ तो IGST जो पे कर रही हूँ उस पे मैं CGST का क्रेडिट यूज कर सकती हूँ। सिमिलरली SGST का क्रेडिट मैं SGST के लिए यूज कर सकती हूँ और IGST को पे करने के लिए यूज कर सकती हूँ। और IGST का क्रेडिट IGST के लिए, पहले तो IGST के लिए यूज होगा, फिर CGST, SGST या UTGST के लिए। इंपोर्ट्स को कहाँ लाया गया? इंपोर्ट पे टैक्स है, यस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इन पे भी IGST लगाया गया है, राइट? अगेन एक्सपोर्ट्स को भी IGST में लाया गया है, इंटर स्टेट माना गया है, किंतु राइट नाउ वी हैव ट्रीटेड इट एज zero rated supplies. So export पे no tax is payable, और जो हमने इनपुट टैक्स जो भी पे किया है, जब हमने खरीदा था माल, उसका क्रेडिट हमें मिलता है। क्रेडिट कैसे मिलेगा? हमें रिफंड मिल जाता है, एक्सपोर्टर को रिफंड मिल जाता है, राइट? रेट्स ऑफ GST we definitely have, अभी तो 12%, 18%, 28%, these are the common rates for GST. GST is supplier of goods and services is liable to pay GST. इसे हम फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं, जहाँ पे सप्लायर को पे करना होता है GST, राइट? किंतु कुछ केसेस में जैसे इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे हम GST किससे ले रहे हैं? Who has to pay? The
रेसिपिएंट, इसे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ये भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हु हैज टू पे द टैक्स, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ आइडिया कि नॉर्मली सप्लायर को पे टैक्स करना पड़ता है, ही हैज टू पे द टैक्स, बट एट टाइम्स डेफिनेटली रेसिपिएंट से हम टैक्स लेते हैं, रेसिपिएंट हैज टू पे द टैक्स, दैट इज in case of a reverse charge mechanism, right? For example, in case of e-commerce operators, right, GST is actually GST की liability e-commerce operators पे आती है। क्या यहाँ पे TDS होता है? Yes, tax deduction at source का भी यहाँ पे provision दिया गया है। Basically, जब हम government undertaking से कोई contract कर रहे हैं, राइट, मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, तो जब गवर्नमेंट हमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर रही है तो वो क्या करती है, और वो पेमेंट इफ इज एक्सीडिंग 2.5 लाख, तो फिर वो क्या करती है, गवर्नमेंट हैज टू चार्ज, इट हैज टू डिडक्ट सर्टेन TDS, that is 2% of the total payment made, and it is remitted into the government treasury. Similarly, tax collection at source भी provision दिया गया है, that is हर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट 1%, नॉट एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ही हैज टू पे इट, कलेक्ट इट फ्रॉम द कलेक्ट इट एंड पे इट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. Returns, filing of the returns. Yes, every person registered under GST will have to file one or the other return, right? अभी right now no, the system of GST has become, you know, very transparent कर दिया गया है, online system है, and you know, the interaction between people and ये सब avoid करके एक GSTN portal बनाया गया है जिसपे you have to file the return directly, you go to the site there and you file the return, right? So a registered person will have to file the return monthly, that is 20th of the next month, या फिर yearly basis पे जब हम composition scheme की बात करते हैं, by 30th April of the next financial year. Input service distributor है, he has to file the return by 13th of the next month. TDS है या person जिसने TCS collect किया है, उन्हें file करना है 10th of the next month से, और non-resident person है तो he has to file the return 20th of the next month, या फिर जो भी उसका रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी खत्म होता है उसकी 7th डेट तक उसे रिटर्न फाइल करना होता है. सेल्फ असेसमेंट स्कीम दिया गया है जीएसटी में. जैसे मैंने आपसे कहा, हर चीज आजकल ऑनलाइन हो गई है, ट्रांसपेरेंसी लाया गया है. मुझे कहीं भी जाके किसी से बात नहीं करना है कि कहाँ टैक्स असेसमेंट मेरा कहाँ से करवाना है, एक्सेट्रा. So every person registered has to himself assess the tax payable by him for that period, and he has to file that return, right? सबको एक GST compliance rating score मिलता है, right? GST compliance rating score based on his record of compliance. जैसे हमें एक अप्रेजल मिलता है ना, वैसे GST compliance रेटिंग स्कोर दिया जाता है जो हमारे वो पब्लिक डोमेन में आता है कि ओ दिस पर्सन हैज कंप्लाइड, जीएसटी कंप्लायंस इसका इतना है एंड सो ऑन. यदि आपने जीएसटी नहीं पे किया है तो डिमांड का नोटिस गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है, राइट? डिमांड्स आर रेज्ड इफ टैक्स इज नॉट पेड, या फिर शॉर्ट पेड, या फिर रिफंड है या एरोनियस रिफंड ले लिया हमने, या रॉन्ग अवेलमेंट किया है, तो फिर शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट हमें इमीडिएटली डिमांड नोटिस भेजती है. इस डिमांड नोटिस का नॉर्मली क्या होता है, लिमिटेशन पीरियड है 3 years. जिस दिन मैंने एनुअल जो रिटर्न फाइल किया है उसे 3 साल के अंदर अंदर मुझे कोई भी यदि डिमांड मेरे ऊपर है तो फिर वो नोटिस भेज सकती है फॉर शॉर्ट पेमेंट या नॉन पेमेंट. किंतु यदि मैंने फ्रॉड किया है तो डिपार्टमेंट के पास अधिकार है कि 5 साल तक मुझे ये नोटिस, 5 साल का पीरियड है, 5 साल तक कभी भी ये नोटिस भेजा जा सकता है. यदि फ्रॉड या उसको लगता है सप्रेशन है, जानबूझकर मैंने मिसस्टेटमेंट दिया है, कुछ फ्रॉड किया है, तो 5 साल तक का पीरियड है. I can claim refund under GST. Definitely I can claim refund. और 2 साल तक का के पीरियड में मुझे लगता है कि मैं I have the right to, मुझे रिफंड मिलना चाहिए तो मैं क्लेम कर सकती हूँ, और along with the interest.
एक और प्रोविजन दिया गया है, एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर। एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर क्या है? सपोजिंग अ मैन्युफैक्चरर हैज सोल्ड, एक मैन्युफैक्चर किया है एंड सप्लायर हैज सोल्ड द प्रोडक्ट। अब जब सेल किया कर रहा था या जब मैन्युफैक्चर हो रहा था या जब उसने स्टार्ट किया था, उस पर्टिकुलर कमोडिटी पे से 12% टैक्स लग रहा था। अब बाद में 12% टैक्स पे उसने एक रेट फिक्स कर दी कि ओके द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम इज से 2000 रुपीज, जिसमें 12% टैक्स लग के हो रहा था। अब नो सब्सिक्वेंटली या तो रॉ मटेरियल चीप हो गया या हम कहें कि जीएसटी रेट कम हो गई उस कमोडिटी पे, 5% ये लग रही है। फिर भी यदि उसने, उस सेलर ने यदि 2000 ही रेट रखी है, राइट, एक्चुअली क्या होता है जब रेट कम हुई है या कोई भी रिडक्शन हुआ है प्राइसेस में, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सप्लायर टू पास दिस बेनिफिट टू द कंज्यूमर। कैसे पास करना? रेट्स रिड्यूस करके। यदि उसने नहीं किया तो फिर एक एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर, एक डिपार्टमेंट है विच विल डेफिनेटली पेनलाइज सच सप्लायर्स, एंड जो भी डिफरेंस जो बन रहा है वो क्या करेंगे, उनसे पेनल्टी के तौर पे लिया जाएगा और वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कर दिया जाएगा। पतंजलि का ये केस हुआ था बीच में कि उन्होंने प्राइस रिडक्शन नहीं दिया था तो उन्हें पेनल्टी उनके ऊपर पेनल्टी लगाया गया था, राइट। सो दिस इज अनदर एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर, ताकि जैसे जैसे रिडक्शन होगा वो बेनिफिट वो लोग पास करते जाएंगे टू द, दे हैव टू पास दैट बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स। नाउ जीएसटीएन, जैसे मैंने आपसे कहा, एक पोर्टल बनाया गया है, क्योंकि अब सारी चीजें हमें, इट इज ओनली थ्रू द एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन एक पोर्टल बनाया गया है विच केटर्स टू द नीड्स ऑफ जीएसटी। ये क्या करता है, एक शेयर्ड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लिंक किया है, स्टेट गवर्नमेंट को लिंक किया, टैक्स पेयर्स को और हर स्टेक होल्डर को लिंक करके फॉर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। ये कॉमन पोर्टल है जो हम, अब यदि आप कभी इस साइट को विजिट करोगे तो आपको दिखेगा, दैट इज www.gst.gov.in। तो जो जीएसटीएन मैनेज कर रहा है, इट इज any registered person can definitely access this over internet. Taxpayer कर सकता है, CA, advocate, internet by tax officials कर सकते हैं, right? This is a common portal to facilitate the payment and the return filing etc. सबको facilitate करना, plus सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के बीच में एक फैसिलिटेटर बन के ये पोर्टल को लाया गया, राइट। अब अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि गुड्स आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी क्या क्या है। वी हैव से अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसमें पावर अभी स्टेट के पास ही है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो अब नोटिफाई होंगे, एंटरटेनमेंट टैक्स it remains with the local bodies, and tobacco again GST within the purview of GST, but excise duty भी है इसमें। Okay, now benefit to the economy. GST is a win-win situation कहती हूँ मैं तो, win-win situation for the entire country, right? अब I think you all must have also understood कि क्यों ये win-win situation है। First, creation of unified national market. यूनिफाइड नेशनल मार्केट है। पहले क्या होता था, मैं राजस्थान में बैठ के, मैं यदि आप सोचूं कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है असम में, तो इट वाज नॉट इजी, आई कुड नॉट मेक आउट कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वहां के टैक्स सिस्टम अलग हैं एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट आई हैड टू गो एंड स्टडी देयर एंड ऑल दिस। पर अब मैं यहाँ पे बैठ के इमीडिएटली आई कैन से यस, आई कैन स्टार्ट अ बिजनेस इवन इन असम, इवन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री विद वन टैक्स रेट। सो एक नेशनलाइज्ड यूनिफाइड नेशनल मार्केट क्रिएट किया गया। It has given a boost to Make in India initiative. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसको GST has definitely given a boost to it. Why? Because making the products more competitive by only levying one tax के कारण it has created brought India as a manufacturing hub. That is the reason आज हम even we are talking about Make in India things and we are trying to compete with the Chinese items. राइट, हम वहां से डिस्कार्ड करते हुए हम अपने ही मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट कर रहे हैं। सो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेफिनेटली दिस जीएसटी रोल आउट। एनहांस्ड इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट,
सारे जब टैक्सेस हमने सबस्यूम कर दिए हैं, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा सब अमालगमेट कर दिए हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैज डेफिनेटली एनहांस्ड, बढ़ गई है, और इसके कारण हमें बूस्ट मिला है एक्सपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, एंड जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंपलर टैक्स रिजीम, फ्यूअर एग्जेम्पशंस, ज्यादा मल्टीप्लिसिटी नहीं है, ज्यादा टैक्सेस नहीं है, ज्यादा हैसल्स नहीं है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान किए गए हैं। यहाँ पे ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स है, क्योंकि जीएसटीएन पोर्टल है जहाँ पे जाके आपको करना है, तो कहीं यहाँ पे इंटरेक्शन विद वो नहीं है कि आपको ऑफिसर को जाके पैसा खिलाना है, उससे अपना काम करवाना है, ये सारे काम बंद हो गए हैं। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, सिंगल टैक्स है तो कंप्लायंस कॉस्ट भी सिंपल हो, जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स रखते थे, एक्साइज ड्यूटी का रिकॉर्ड रखना है, सर्विस टैक्स का रिकॉर्ड रखना है, ये सब खत्म हो गए, राइट। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट है? Definitely, it has given more relief to industry and agriculture, more comprehensive coverage है, and input tax set off हमें मिलता जा रहा है, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बूस्ट मिला है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो हमने खत्म करने की कोशिश किए, तो डेफिनेटली द कास्केडिंग, मोस्ट ऑफ द टैक्सेस जो अमालगमेट हुए हैं उसके कारण ही कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गए हैं। स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला बाय गिविंग कंपोजिशन स्कीम एक्सेट्रा, एंड नेशनल जो अपॉर्चुनिटी मिली है सिंगल टैक्सेशन सिस्टम से, जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है टू एक्सपैंड देयर बिजनेस नॉट ओनली इन वन स्टेट बट ऑफ कोर्स ऑल ओवर द कंट्री। आते हैं जस्ट सिंपल लास्ट ये कि कलेक्शन हमारी क्या रही है, राइट। जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड मार्च 21 में रिकॉर्ड कलेक्शन रहा है, दैट इज ₹1,23,902 करोड़ का, इन स्पाइट ऑफ द पेंडेमिक जो हमने देखा है इस टाइम पे, बट रिकॉर्ड कलेक्शन डेफिनेटली मार्च में आया है। दैट शोज हाउ जीएसटी पीपल हैव एक्सेप्टेड दिस सिस्टम, एंड जीएसटी से कैसे रेवेन्यू बूस्ट होता जा रहा है, राइट। लास्ट ईयर से हम देखेंगे तो डेफिनेटली इनिशियल 6 मंथ्स में जब लॉकडाउन था तो ग्रोथ थोड़ी कम थी, बट मार्च तक में रिकॉर्ड ग्रोथ लाया गया। क्लोजर मॉनिटरिंग हुई, फेक बिलिंग खत्म कर दिया गया, देन मल्टीपल यूजिंग डाटा, कलेक्शन डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, इट वाज पॉसिबल कि आप हर जगह से डाटा कलेक्ट करके यू कुड डेफिनेटली आप इमीडिएटली कह सकते थे कि नो यू कम विद इन द एम्बिट ऑफ द जीएसटी, इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सारी सिस्टम इट वाज पॉसिबल अंडर जीएसटी बिकॉज ऑफ वन पोर्टल। दिस इज जस्ट द ट्रेंड कलेक्शन आप देख रहे हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में और इस साल के अप्रैल में काफी रेवेन्यू कम था, बट जाते जाते मार्च में you'll see from September onwards to March में तो record revenue लाया गया। I hope with this I have been able to at least give a brief idea of what it is. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for such a nice presentation. Now, I would like students to have any queries. If you want to ask any question related to GST and our today's topic, you can ask to Vandana ma'am. Any queries? मैम एक क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में कि स्टैम्प ड्यूटी पर भी टैक्स नहीं लगता है क्या? किरण राजावत Stamp duty itself is a tax. Stamp duty itself is a tax, ना? Stamp duty आप लगा रहे हो ना? वो itself is a tax. Fine. So I hope Kiran you have got the answer. Yes, ma'am. Right है, आप स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं। Okay, okay. Any more questions? एक chat box Excuse me, पे आया, ma'am. can we get the PDF? Oh, you can contact me later for that PDF. Ma'am, you used a term cascading effect. What does it mean? या कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि हम जब जैसे मैंने आपको बताया कोई मैन्युफैक्चर यदि मैंने किया तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई,
राइट? अब वही चीज जब मैं सेल करती हूँ, स्टेट में सेल हो रहा है तो उस पे वैट लग गया, तो वैट किस पे लग रहा है? वैट लग रहा है बोथ जो मटेरियल की कॉस्ट है या जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उस पे, प्लस उसमें एक्साइज ड्यूटी मिल के उस दोनों अमाउंट पे हम पे वैट लग रहा है, राइट? तो एक तरह से हम किस पे वैट जब दे रहे हैं तो किस पे दे रहे हैं? नॉट ओनली द कॉस्ट प्लस एक्साइज ड्यूटी पे भी टैक्स पे कर रहे हैं, यानी टैक्स पे किया जा रहा है, इजंट इट? तो इसे हमने खत्म करना है। दिस इज कॉल्ड एज कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स पे करते जा रहे हैं हम, ये एक ही जगह पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो हम पे गुड्स पे लग रहा है उस पे ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी इन्वॉल्व है या वैट है, उस पे फिर से हम सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड एज कास्केडिंग इफेक्ट। Okay, ma'am. Thank you. Any other question? And we can see one question in the chat box कि मैम imports and exports पे GST क्यों नहीं लगता? नहीं लगता है। आई डिडंट से इंपोर्ट पे नहीं लगता, इंपोर्ट पे तो बिल्कुल लगता है। इंपोर्ट पे IGST लगता है एंड सेंटर के पास ये अधिकार है। एक्सपोर्ट पे हमने इसको जीरो रेटेड किया है टू इनफैक्ट बूस्ट अप द एक्सपोर्ट्स। हमने राइट नाउ इसको क्या कर रखा है, एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया नहीं, ऐसा नहीं है कि लगाया नहीं है, बट इसको जीरो रेटिंग कर रखा है, जीरो रेट पे दिया गया है। इनफैक्ट एक्सपोर्टर्स को हमने और बेनिफिट दिया है कि जो भी आपने रॉ मटेरियल्स वगैरह पे जो GST पे किया है वो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों आ रहे हैं, एम्बिट में आ रहे हैं, उन पे सेंट्रल टैक्स लगा रही है, IGST लगता है, राइट? Rupali ma'am has already discussed CGST and IGST का difference. Still ma'am she wants to ask, I think she missed. ओके, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो सेंटर लगाती है, पर ये किस पे लग रहा है? इंट्रा स्टेट सेल्स पे। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या है? विद इन द स्टेट। राजस्थान में मैंने यदि कोई माल बेचा है तो उस पे क्या लगेगा? CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, राइट? CGST और SGST। CGST कौन लगा रहा है? सेंटर। SGST कौन लगा रहा है? स्टेट। पर यही मैं माल यदि राजस्थान से बाहर भेजती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंडिंग इट टू से महाराष्ट्र, तो वहां क्या लगेगा? IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो CGST, SGST ये इंट्रा स्टेट सेल्स पे लगता है और IGST इंटर स्टेट सेल्स पे लगता है, राइट? Okay, ma'am. Thank you. Any other question, girls? Ma'am, I think आपने बहुत ही अच्छे से बताया सबको, तो there are no more queries. So now I would like to invite Dr. Sakshi Sharma ma'am to give a vote of thanks to Vandana ma'am. Thank you so much, ma'am, for the interesting and informative session on GST. Your lecture had a significant impact on every student presented here. Ma'am, you beautifully explained the system, implementation, and the procedure of GST. Thank you so much, ma'am, for devoting your time and energy. Thank you so much, everyone presented here. Students, please fill the feedback form provided in the chat box. Thank you, ma'am. Thank you once again. I thank you all so much for listening to me patiently, and thanks again Seema ma'am for giving me this opportunity. Thank you. It was a wonderful session, ma'am. Seema ma'am, would you like to say something? Fine. So thank you, ma'am. Let's end this session. Looking forward for more sessions from you in future. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you so much.